Hello everyone, welcome back to Monica Khurana's Academy. Today we are going to start tenses. Okay, as you know, before tenses you must have good knowledge about sentence structure and subject verb agreement that we totally discovered. Those who are new, please watch those videos first and then learn tenses from this particular video, and from this session onwards whatsoever videos will come. Okay, so thank you for watching our videos guys, and now let's learn about tenses. As you know, there are three types of time segments, that is present, past and future. Okay, we will do step by step, but this is introductory video to tenses and you must understand how we will cover that. First I'll give you the concept, then some examples, and then you will assess yourself by taking that test which is associated with each and every video, whatever you join with us. Okay, then present, past, future. In every tense we study different elements, different time segments. Okay, like so many teachers explain you only 4 types of tenses, like indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. Okay, but many of you forget to learn one thing, that there are 5 types of tenses. Okay, first is simple tense. ये समझने वाली बात है बेटा, इसको कई बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं और वो इसको सिंपल सेंटेंसेस में ले जाते हैं, बट दैट इज ऑल्सो टेंस. In these kinds of tenses we do not use helping verb. Actually helping verbs are verbs only out here, and rest of the 4 tenses you will find helping verb and verb. Meaning in these types of tenses the sentence structure would be divided as subject plus helping verb plus verb form plus object. That structure will be there to make sentences, but here this helping verb is verb only. Let's take some example. First understand, there are 5 types of tenses: simple present, present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous, simple past, past indefinite, past continuous, past perfect continuous, simple future, future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Now why I told you that there are different time segments, like whenever we talk about regularity or something, like the things which have been done or which are regular irrespective of time, there we usually take indefinite. Okay, regular routine nature things. We will discuss what in present, past, future step by step. Like next video would be on present indefinite, like present tenses only. Second video will be on past tenses only, and then third video will be on future tenses only. अभी ये जो वीडियो है this is just an introductory session. Okay, then continuous की अगर हम बात करें तो कोई भी continue task हो, like right now I am teaching you and you are learning right now, so this is continuity of the time. अब यही अगर बात past में हो जाएगी तो वो past की continuity show करने के लिए past continuous हो जाएगा. अगर future की continuity की बात करेंगे तो वहाँ पे future continuous show करना है. अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस शो करना है. परफेक्ट कौन सा होता है? जनरली जो अभी ख़त्म होके हटा हो, या पास्ट में ही जब हम पास्ट की बातचीत कर रहे हैं, एंड देन वी हैव टू रेफर टू सम एक्शंस विच वर जस्ट कंप्लीटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो उन एक्शंस को इंडिकेट करने के लिए हम जो टेंसेस का यूज़ करते हैं वो परफेक्ट टेंसेस होते हैं, राइट? जनरली, रिसेंटली, or like these kinds of adverb we use in those sentences or tenses. So perfect continuous कौन सा होता है कि जो एक
पास्ट में स्टार्ट हुआ, और अगर वो प्रेजेंट की बात हम कर रहे हैं तो अभी भी कंटिन्यू होगा वो. लाइक आई हैव बीन रिकॉर्डिंग वीडियोज़ सिंस 9 AM in the morning and it's 3 PM. सो ये जो है क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है. लाइक एक का बिगिनिंग टाइम कुछ और था और अब तक कॉन्टीन्यूटी में है. वही जब हम पास्ट में बात करेंगे, लाइक इन दोज इरा, इन यू नो टाइम ऑफ war, or in times of war or in struggling time people used to do these things or those things. तो उस टाइम की अगर continuity जो पास्ट में शुरू हुई और प्रेजेंट में जाके ख़त्म हुई उस टाइम के, तब हम उनको शो करेंगे. फ्यूचर कॉन्टीन्यूटी या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस क्या होगा कि जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये काम तब से शुरू हो गया होगा और अभी जाने तक हो रहा होगा. ओके, दोज काइंड्स ऑफ sentences we use. Okay, and please take my advice out here, do not learn tenses by those Hindi type things कि हिंदी में sentence आपका ऐसा बनता है वैसा बनता है तो आप उसको use कर रहे हैं. No, please, if you are learning tenses here, first learn according to the English language, then translate those sentences and try to find out which kind of tenses they are. Okay, सो विच काइंड ऑफ सेंटेंसेस दे आर. तो वो आपको बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है. सिंपल की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो ये बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं या सिंपल टेंस कौन से होते हैं, इसमें बी हमारी वर्ब होती है. लाइक प्रेजेंट में आ जाएगी ये इज एम आर. इज क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग. ओके, ये स्टेट ऑफ बीइंग की तरह भी यूज़ हो सकते हैं. और अगर मैं हैज़ हैव की बात करूं तो ये स्टेट ऑफ पोजेशन हो सकता है कि आप अपने पास किसी चीज़, आपके पास कोई चीज़ है और आप उस पोजेशन को शो करना चाह रहे हैं तो वो हैज़ हैव है. और यही अगर मैं इसका यूज़ करती हूँ कि इज़ एम आर, हैज़ हैव एंड हैड आप इसको यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली आपका हैड पास्ट में आ जाएगा. और अगर मैं डू डज़ यूज़ करती हूँ तो ये स्टेट ऑफ एक्शन हो जाता है. आप देखते हो कि यही चीज़ें इन बाकी सारे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होती हैं, लेकिन सिंपल टेंस या सिंपल सेंटेंसेस या प्रेजेंट सिंपल टेंस या पास्ट सिंपल टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस वो होंगे जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी. हेल्पिंग वर्ब ही आपकी मेन वर्ब होती है. सपोज अगर मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है तो मैं क्या बोलूँगी आपको? आई एम अ टीचर. तो स्टेट ऑफ बीइंग आपसे शेयर कर रही हूँ. आई हैव अ पेन. इधर हैव जो है वो हैव आपका स्टेट ऑफ पोजेशन है, वो आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है. हैव आपका मेन वर्ब बन गया है. तो दिस इज सिंपल टेंस. आई हैव अ मार्कर. ओके, दिस इज सिंपल टेंस. ओके, आई डू टीच ऑन ऑल डेज. दिस इज माई स्टेट ऑफ एक्शन. सो दैट इज आई डू टीच जो हो जाएगा ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा. ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं बनेगा. जनरली आप जिसमें अपने एक्शन की कमांड करते हो, यू वॉन्ट टू डू दिस, आई डू. सो आई डू इज़ बेसिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके गाइज, सो ये आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. यही चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू पास्ट चेंज हो जाएंगी. लाइक आई हैड 4 मार्कर्स. सो वो आपका क्या हो जाएगा? स्टेट ऑफ पोजेशन इन पास्ट. ठीक है, तो वो पास्ट सिंपल टेंस हो गया. तो आज का आपका टास्क सिर्फ इतना है कि आप रीड करिए, जितने सेंटेंसेस आप रीड कर सकते हैं उनके बेसिस पर जज करने की कोशिश करिए कौन सा पास्ट है, कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा फ्यूचर है. और आर यू एबल टू फाइंड आउट, चेक योरसेल्फ, आर यू एबल टू फाइंड आउट सिंपल टेंसेज ऑल्सो, कि आपको सिंपल टेंसेज मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, या आप उनको एक टेंसेस का हिस्सा मानते ही नहीं हैं और आप उनको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं या नहीं. तो ये है बेटा आज का इंट्रोडक्टरी सेशन. हम इस टाइप के सेंटेंसेस आपको टेस्ट में देंगे. आपको रिकग्नाइज़ करना होगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. अभी उसमें ये मैं कोशिश करूँगी कि सिंपल टेंसेस के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन दूँ आपको. इनमें से सिर्फ आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जज करना हो आपने. लेकिन नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बिल्कुल अच्छी अप्रोच के साथ बाकी सारे टेंसेस मिलेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नाउ. गॉड ब्लेस यू ऑल.